Good morning, students. And as in our last class, we have read our chapter, which was chapter 6, Who I Am. So we have read about Radha, Nasir, Rohit, Sarbjeet, Dolma, and Peter. Now today it's turn to do the exercises of this particular chapter. Students, there are no question answers of this chapter given or asked in your book. There are fill in the blanks, true, false, and some other exercises. So let's start with your page number 73. As you can see in your note in your main book, it is page number 73, and there are three questions in the form of fill in the blanks given. Peter's favorite day of the week is Sunday because. Now you can write, because all the family members go to the cinema hall together to see a movie, and in interval his father buys peanuts for all of them. Okay, so this is your question number first answer. Now the second question is Nasir wants to learn. So you can write the method of preserving seeds so that they could be used for sowing the next year. Okay. The third question is Dolma believes that she can make a good prime minister because. You can write, because she confidently solves her classmates' problems, her teachers always trust her to do a task, and she wants to improve the condition of the common people of her country. So this you can write. Now in B number there are 4 sentences are given and you have to write true or false. Peter is an only child. You can write false. When Sarbjeet gets angry, he shouts at people. It's false. Nasir lives in the city. It's again false. And Radha's mother enjoys doing things with her. It's true. Okay. So now let's move forward. You can see in page number 74 and 75 there are multiple intelligences has been given to you, and that page 74 and 75 you need to read out properly. पेज 74-75 को आपको ठीक से पढ़ना है, and a few question regarding this can be asked to you, given to you, and it could be beneficial for you. आप ये questions के आंसर लिख लो, जो कि एक्चुअली इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आंसर है नहीं, बट ये जो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो इन्हें आपको नोटबुक में लिखना है. आप देख सकते हो हु क्रिएट्स मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स. तो पर्सन्स विद विजुअल इंटेलिजेंस क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स. ओके. नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल कैन बिकम ए ट्रांसलेटर और जर्नलिस्ट. पीपल विद वर्बल इंटेलिजेंस कैन बिकम ए ट्रांसलेटर और जर्नलिस्ट. What does a person with mathematical intelligence like to do? A person with mathematical intelligence like to do experiments. Find the word from the passage which is the opposite to rarely. So it is always. Being good in studies, at your studies is one kind of intelligence, but there are many others too. Read the descriptions to find out which of the following types of intelligence best describes you. Okay. Remember that there will probably be more than one type of intelligence which fits you. ये पेज नंबर 75 से जो है दिया हुआ है. पेज 75 में आपका ये 2 नंबर का दिया हुआ है, और जो हमने अभी भी क्वेश्चन आंसर्स देखे ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आपको ये करना है. ठीक है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ये भी आपको करना है, ये क्वेश्चंस भी आपको करना है. हु हैज़ ए गुड सेंस ऑफ बैलेंस. फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं पूछे गए हैं, बट आपको करना है. हु हैज़ ए गुड सेंस ऑफ बैलेंस. पर्सन्स विद बॉडीली इंटेलिजेंस हैव ए गुड सेंस ऑफ बैलेंस. हु कैन इजिली रिकॉग्नाइज ट्यून्स. पर्सन्स विद म्यूजिकल इंटेलिजेंस कैन इजिली रिकॉग्नाइज ट्यून्स. व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल कैन नोटिस अदर पीपल्स मूड्स. People with interpersonal intelligence can notice other people's mood. Find the word from the passage which means the same as silent acting. It is miming.
ये जो क्वेश्चंस हमने शेयर किए हैं ये आपको नोटबुक में करना है। टेक्सचुअल क्वेश्चंस की बात करें तो पेज नंबर आप देख सकते हो 76 में आपका वर्किंग विद द टेक्स्ट में फिर थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। फर्स्ट वाला तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दिया हुआ ही है, मतलब फर्स्ट के पहले वाला, और 4 क्वेश्चंस हैं। देखो आप, व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज माई बॉडीली इंटेलिजेंस, ठीक है। When I enjoy looking at maps and examining pictures, I use my visual intelligence. When I enjoy looking at maps and examining pictures, I use my mathematical intelligence. When I enjoy working with numbers and solving maths problems, I use my mathematical intelligence. When I enjoy telling a story or arguing, I use my वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद मैचिंग का एक क्वेश्चन है, मैच द जॉब ऑन द लेफ्ट विथ इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। तो ये आप देख सकते हो, मैंने शेयर किया आपके साथ। जैसे 1 का सी है नेविगेटर का, फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट ए प्लेस टू ए प्लेस और द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। 2 का ई है आर्किटेक्ट का, प्लान्स द डिज़ाइन ऑफ ए बिल्डिंग टाउन और सिटी। 3 का बी है पॉलिटिशियन का, वर्क्स इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। 4 का एच है इंजीनियर का, डिज़ाइंस एंड बिल्ड्स थिंग्स लाइक रोड्स ब्रिजेस एक्सेट्रा। उसके बाद जो है 5 का जे है कंप्यूटर प्रोग्रामर का होगा, डिज़ाइंस अ सिस्टम बाय विच ए कंप्यूटर जो है कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन। और उसके बाद आपका 6 का जी है एथलीट का, वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सच एज रनिंग जंपिंग एक्सेट्रा। 7 का एफ है डिस्क जॉकी का, कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, ठीक है। 8 का आई है जो है कंपोजर का होगा, मिक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक। 9 का ए है, 9 का ए है इसमें काउंसलर का होगा, एडवाइजेस पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स पर्सनल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। और 10th का डी है जर्नलिस्ट का होगा, रिपोर्ट्स ऑन रिसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी। तो दिस इज योर overall solution of this particular chapter number 6. Apart from that, you can see there is a writing portion which I am not going to share with you. Writing portion is your homework. Write a paragraph about yourself so that people who read it will get to know you better. You could write about yourself from any point of view or choose one of the following topics: what I enjoy doing most, what makes me angry, what I hate to do, what I want to become. Remember to give a reason or details of what you write about so that anyone reading it will understand you better. After you have finished your paragraph, affix your photo on the sheet and display it on the wall. Read each other's paragraphs. Did you understand someone else better after you had read what he or she wrote? तो आपको इतना नहीं, आपको write a paragraph, आपको ये 2 लाइन उतारनी है। Write a paragraph about yourself so that people who read it will get to know you better. यहाँ तक क्वेश्चन उतारोगे। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका पेज 77 राइटिंग पोर्शन में है। सिर्फ 1 लाइन उतारोगे, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योरसेल्फ सो दैट पीपल यू हु रीड इट विल गेट टू नो यू बेटर। इतना उतार करके आपको अपने बारे में 8 to 10 लाइन्स, 8, 9 या 10 लाइन्स में आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो है आपको इतना ही मैं करवा रहा हूँ, और थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कस करें, मैं सिर्फ डिस्कस कर सकता हूँ और आपको कुछ लिखवाऊंगा नहीं। जैसे कि पेज 78 और 79 में कुछ रीडिंग के लिए दिया हुआ, वो आप लोग अच्छे तरह से पढ़ना, ठीक है। और फिर पेज 80-81 में जो है वो हम लोग आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द स्कूल ही हम लोग डिस्कशन करके करेंगे। पेज 80-81 ये हम लोग बिना डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। विदाउट डिस्कशन दिस कैन नॉट बी
अंडरस्टूड। और अब स्टूडेंट्स हम लोग एक पोयम सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं आज, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दैट पोयम। आज सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं एक पोयम का, विच इज द नेक्स्ट पोयम ऑफ चैप्टर 6, द वंडरफुल वर्ड्स। Imagine a world without language. All humans speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. ठीक है। अगर मान लो भाषा ना हो, भाषा बिना ये दुनिया कुछ भी नहीं होगी। इंसान जो एक दूसरे से बातें करते हैं वो भाषा के द्वारा ही करते हैं। हम अपने विचारों को व्यक्त भाषाओं के द्वारा ही करते हैं। अब इस पोएम को पढ़ते हैं। Never let a thought shrivel and die for what want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. कहने का मतलब है कि हमें किसी विचार को बिना कहे मरने नहीं देना चाहिए, और विचारों को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा है। आपको कुछ शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ता है और अपने दिमाग में पैदा होने वाले अच्छे अच्छे विचारों को आप व्यक्त कर सकते हो। अच्छे अच्छे विचारों को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश से बेहतरीन भाषा और नहीं है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर कही नहीं जाती। Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing. And everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. Mary O'Neill. Students, जो शब्द होते हैं वो हमारे विचारों का फूड और ड्रेस यानी खाना और कपड़ा होते हैं, क्योंकि शब्दों के द्वारा ही हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। शब्दों के द्वारा ही हमारे विचारों को शरीर मिलता है, हमारे विचारों को पंख मिलता है। और हर एक व्यक्ति अच्छी बातें ही सुनना चाहता है, सुंदर बातें सुनना चाहता है, भली बातें सुनना चाहता है। शब्द जो है वो हमारे विचार होते हैं दिमाग में कैद, उन्हें दिमाग से आज़ाद करते हैं। जो विचार आपके दिमाग में कैद है वो सरप्राइज लेकर के बाहर शब्दों के द्वारा ही निकलते हैं। तो शब्द जो होते हैं दे आर मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। तो शब्दों को हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो इसमें हमारी ही गलती होती है। अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी सोचनी चाहिए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं अपनी जो है चैप्टर्स में। सो थोड़ा सा मैंने आपको 1-2 क्लासेस पहले भी बोला था, थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए, क्योंकि कुछ गिनी चुनी ही नोटबुक्स अभी आ रही है, बहुत सारी नोटबुक्स तो आ भी नहीं रही है। रिपीटेड बोलने के बाद कई बच्चे अभी नोटबुक भी नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फॉर अ टाइम बीइंग मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा हूँ। आज का वीडियो यहीं तक। प्लीज़ अपनी नोटबुक्स सबमिट करिए वेडनेसडे और सैटरडे को। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम along with the other chapter also in our next video. Thank you very much.